Okay, my dear students, again welcome with a new lecture. Dimensions continued. There are so many dimensions of so many physical quantities, so you will have to keep patience. And by moving on in this process, there will be a day when you will say that ask any dimension. Ask dimension of any physical quantity. The day will come. Slow and steady wins the race. Let us do new dimensional formulae for some quantities. And the quantities continuing from that, these are Stephen's constant. Stephen's constant. These are the constants. Wien's constant. Wien's constant is denoted by B. Stephen's constant is denoted by sigma. These are the symbol. And universal gas constant. Gas constant is denoted by, this is gas constant. Universal gas constant. Then electric field or electric field intensity, it is named as electric field intensity. One and the same thing. Magnetic field, this is denoted by E, this is denoted by B. Magnetic field intensity or magnetic field. One and the same thing again. Another is permeability. Permeability. Mu naught. Finish this. Stephen's constant. This is first one. This is second. This is third. The process. This is fifth, and this is sixth. We will do the dimensional formula. First is Stephen's constant. This is Stephen's law. What Stephen's law say? Stephen's law. There is a hot body with temperature T in absolute scale. जब भी कोई गर्म बॉडी होती है तो ये हीट एनर्जी एमिट करती है. अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड per unit area, per unit time is directly proportional to fourth power of its temperature in absolute scale. इसका टेम्परेचर लो, उसको एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल में बदलो, उसकी पावर 4 करो, उसके प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो 16 टाइम्स मोर हो जाएगी. टेम्परेचर डबल करने से डबल नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 है बच्चों. अगर हम T को 2T कर दें डबल्ड, तो नई जो एनर्जी होगी बच्चों वो 16 टाइम्स 2 raised to power 4 times this 16 times emission will be there. So we have to bear it in mind that amount of energy radiated per unit area per unit time becomes sweet 16 times more if temperature is doubled, and if it is tripled it will be 81 times. This law is called Stephen's law. Mind it, this is not energy per unit area per unit time. This is also named as intensity. I told you 1 or 2 lecture before. आप सबको याद होगा, ये हमने बताया था इंटेंसिटी कहते हैं. ये E for is not energy, ये जरूर ध्यान है. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होगा. E is equal to sigma T4. This sigma is called Stephen's constant. इसके डायमेंशन आपसे मांगे गए हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपसे मांगा गया है. वेरी सिंपल. दिस इज ए न्यू लॉ, नो डाउट, जो 10th तक नहीं आया था, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला बताने के लिए ये ज़रा मुश्किल नहीं है. ये कोई गर्म बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. आई एम गोइंग टू स्ट्रेस ऑन this quantity. I am going to emphasize is proportional to T4. To remove sign of proportionality, some constant must be there. This sigma is named as Stephen's constant.
तो सिग्मा की डायमेंशन क्या आ गई बच्चों, E upon T4, T is the temperature, fourth power of temperature, E is not energy। ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, जल्दी जल्दी में एनर्जी मत बोलना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो सबके डायमेंशनल फार्मूले आपको आते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2 एरिया L स्क्वायर टाइम T, ये पूरा डायमेंशनल फार्मूला E का हो गया। टेम्परेचर raised to power 4, T raised to power 4, it is what Kelvin 4, temperature की Kelvin। this is the final answer, this is m, L square से L square कैंसिल हो गया, mt-3 k-4, this is the answer, important, this is not to be remembered, this law is to be remembered। ऐसे डायमेंशनल फार्मूले बढ़ते जाएंगे। वीन्स लॉ से वीन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। लेट अस प्रोसीड। नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला इज ऑफ वीन्स कांस्टेंट। ये क्या कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन, wavelength of maximum emission is inversely proportional to temperature, this was told by Wien's displacement law, या Wien's law या Wien's displacement law। ये क्या कह रहे हैं, this is wavelength of maximum emission, मतलब wavelength है ये। wavelength एक वेव की जो लेंथ होती है, 9th में हमने पढ़ लिया था, क्रेस्ट और ट्रफ मिला के एक वेव कंप्लीट होती है बच्चों, और उस वेव की पूरी लंबाई को वेव लेंथ, इट इज ए लेंथ, इट इज हैविंग डायमेंशनल फार्मूला L। तो इसलिए लैम्डा m की डायमेंशन आ गई। टू रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सम कांस्टेंट मस्ट बी देयर, दिस कांस्टेंट इज b and this b is named as Wien's constant, b is called Wien's constant। इसका डायमेंशनल फार्मूला आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, b की वैल्यू लैम्डा m इनटू टेंपरेचर, ये एक वेवलेंथ है बच्चों, n फॉर मैक्सिमम, वेवलेंथ लेंथ L, टेंपरेचर केल्विन। जल्दी जल्दी में बच्चे T का टाइम समझ लेते हैं और गलती कर देते हैं, आपने नहीं करनी। K इज केल्विन, L के। श्री एल के अडवाणी जी एक सीनियर बीजेपी लीडर का नाम है, जो बहुत सीनियर मोस्ट हैं बीजेपी में, तो उनके नाम से ऐसे याद रखा जा सकता है बच्चों, L के। Wien's constant का डायमेंशनल फार्मूला L के, L फॉर लेंथ, K फॉर केल्विन। लेट अस प्रोसीड फर्दर, कम ऑन, पूरा जोश मेंटेन रखो, आगे बढ़ो। Wien's constant करते जा रहे हैं। अगला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन होती है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है, एक इक्वेशन होती है, केमिस्ट्री में आएगी, PV is equal to nRT, n is number of mole no doubt, for 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए करें तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट, जो हमें निकालना है टारगेट। P इज नॉट पावर, इट इज प्रेशर ऑफ द गैस। V इज नॉट वेलोसिटी, वॉल्यूम। तो R का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, PV अपॉन T, प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया से वॉल्यूम L3, ये टेम्परेचर है बच्चों केल्विन। तो गैस कांस्टेंट का आंसर आपके बहुत करीब है। फोर्स का mL/T-2, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, L इनटू L, ये केल्विन और ये L3, दिस इज द आंसर। L स्क्वायर L3 से काटोगे, दिस इज mL/T-2 K-1, फाइनल आंसर फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। PV इक्वल टू nRT, रिमेंबरेबल, आप अच्छे से करेंगे, बार बार करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार यूज होगी ये इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर परमेबिलिटी की बात, परमिटिविटी की बात हम कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। परमेबिलिटी, परमिटिविटी, 7 नंबर पे हम परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन से दिखाते हैं। इसका मैंने पहले करा दिया था, और अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज़ होती है, ये कौन सी क्वांटिटी है वो बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
जैसे 10th क्लास का रेफरेंस दूंगा तो जल्दी समझ आएगा। मैग्नेट के चारों ओर जितने फील्ड में इसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है, हर मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है जो जिस बाउंड्री में ये किसी भी आयरन में इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे इस बाउंड्री तक आयरन का पीस रखा तो अट्रैक्ट कर देगा, बाउंड्री से बाहर अगर आयरन का पीस रखा इट विल नेवर बी अट्रैक्टेड, क्योंकि इस फील्ड से बाहर है। इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली चार्ज की जो चारों ओर होता है, हर चार्ज, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, हर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है, लेकिन एक बाउंड्री तक। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा एक बाउंड्री तक। बाउंड्री से अगर बाहर रख देंगे इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। हमने पहले भी बताया था, सपोज करो ये चार्ज क्यू है, ये दूसरा चार्ज क्यू नॉट है, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स आएगा, कितना फोर्स लगाएगा। ये कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है बच्चों डायमेंशन के टाइम, है ना। ये फोर्स किसके ऊपर है, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। दिस विल बी F is equal to K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्यू नॉट चार्ज पे इतना फोर्स है तो यूनिट चार्ज पे कितना, यूनिटरी मेथड लग गया। क्यू नॉट चार्ज पे इतना तो 1 पे कितना, फोर्स ऑन प्लस 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये होगा F अपॉन क्यू नॉट। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आ गया बच्चों K/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फार्मूले ध्यान रखना, F अपॉन क्यू नॉट भी और दूसरा फार्मूला K/R² भी। दोनों में से किसी से निकाले जा सकते हैं, लेकिन इससे निकालना क्योंकि ईजियर है तो इससे हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको आता है, चार्ज का आपको आ चुका है एम्पियर इनटू टाइम, 10th क्लास में आ गया था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम से। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फार्मूला करते हुए कई दिन हो गए, बार बार ध्यान हो गया होगा, mL/T-2, चार्ज का H 80 न्यूटन आंसर, mL/T-3 बच्चों 8-1। वेरी सिंपल, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दोबारा बता देता हूँ, इस क्यू चार्ज के कारण क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज इतना, कहाँ से आया, कूलॉम्स लॉ से। तो क्यू नॉट चार्ज पे जब इतना फोर्स है बच्चों तो यूनिट चार्ज पे कितना, डिवाइड कर देंगे यूनिटरी मेथड, जब डिवाइड करोगे तो K/R² बनेगा और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो फॉर्मूला बन गया फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, चार्ज का ऐड, सॉल्व किया, आंसर आया। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है वो आपने 10th में पढ़ा था, वही फार्मूला यूज होएगा। दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले आपने 10th में एनसीईआरटी अभी बुक में पढ़े हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी चार्ज पार्टिकल सपोज थोड़ा जा रहा है v वेलोसिटी से और ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड को b से दिखाते हैं, तो दौड़ता हुआ जो v वेलोसिटी v से दौड़ता हुआ चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो इसके ऊपर फोर्स आ जाता है, और वो फोर्स होता है, आपको याद है QVB। तो यहाँ से b का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, यहाँ से निकालें। या एक और पढ़ा था आपने, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर जिसमें से करंट पास कर दिया, ये वायर है जिसकी लेंथ L है, करंट I पास कर दिया, इज ए वायर, कंडक्टिंग वायर हैविंग करंट I, it is of length L of course, when it is placed in uniform magnetic field B, then it suffers a force and that force is बिल करके इसको याद कराते थे, BIL। बिल की स्पेलिंग BILL होती है, वो बिल दूसरा होता है, ये ध्यान रखने के लिए बिल बोल दिया जाता है, लेकिन BIL, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, I फॉर करंट, L फॉर लेंथ, F इज फोर्स। तो इससे आंसर निकालो या इससे आंसर निकालो, सेम आएगा। तो दो फार्मूले हैं, B का डायमेंशनल फार्मूला F अपॉन QV, यहाँ से निकल जाएगा। B का डायमेंशनल फार्मूला आपको चाहिए, फोर्स का आपको आता है mL/T-2, चार्ज का 8 और वेलोसिटी का L/T-1, यू विल गेट आंसर।
टी से टी माइनस वन कैंसिल हो जाता है, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, दिस इज द आंसर फॉर बी। बी का क्या ऐसे परमेबिलिटी का, ये भी 10th में आपने सीख लिया था। किसी भी वायर में से करंट पास करते हैं तो वायर वायर नहीं रहती बच्चों, मैग्नेट हो जाती है, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपने 10th में पढ़ लिया था। किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पे आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी बच्चों, और वो वैल्यू थी B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इनटू आर। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, ये म्यू नॉट कहलाता है परमेबिलिटी। इसके डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको चाहिए, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला B इनटू 2 पाई आर क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन आई। अब B का फार्मूला भी आपने सीखा, ये रहा, दिस इज व्हाट एम a minus 1 t minus 2 pi is a fixed number। fixed number के कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। r is the length, a is the current, so you will get answer mu naught is equal to m a minus 2 t minus 2 l। this is final answer। permeability, permeability we have done earlier। दोबारा से बताता हूँ परमेबिलिटी का। किसी भी करंट वायर में से करंट पास करते हैं तो वायर वायर नहीं रहती, मैग्नेट बन जाती है। हर मैग्नेटिक करंट थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो करंट कैरिंग वायर के कारण आर डिस्टेंस पे बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मतलब ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, करंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है। ये आपने 10th में पढ़ लिया था। तो इसलिए म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, और बी का आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं। बी हम जानते हैं 2 पाई का होता है, आर माने डिस्टेंस, नीचे करंट का एम्पियर, वी विल गेट आंसर। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ना कि फाइनल आंसर क्रैम नहीं करना। अब रह गया परमिटिविटी। परमिटिविटी का मैंने इसलिए साथ में लिख दिया, ये तो हम कर चुके। परमिटिविटी कहाँ पे किया था हमने? कूलम्ब्स को, कि हर चार्ज हर दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। कितने फोर्स से करता है? फिजिकल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अगर परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला आता है, पहले तो इसको ध्यान कर लो, दिस इज व्हाट कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट k, तो k का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से हो गया बच्चों, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2। फोर्स का तुम्हें पता है mnt माइनस 2, डिस्टेंस स्क्वायर l स्क्वायर, नीचे एट, चार्ज का एट, दूसरा चार्ज है ये भी है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये आंसर किसका होगा? कूलम्ब्स कांस्टेंट का। अब परमिटिविटी का कैसे निकालेंगे? वी नो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला कूलम्ब्स कांस्टेंट का उल्टा है, क्योंकि 4 पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। ये रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा उसका सारी पावर्स उल्टी कर देंगे। ये आंसर हो गया m। देखो कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहा है m t का स्क्वायर है, यहाँ t की -2 है तो -4 हो गया, a स्क्वायर है a -2 हो गया, a तो ऊपर जाके -2, और l क्यूब हो गया l क्यूब। अब इसका उल्टा कर m की पावर 1 है तो यहाँ जाएगी m की पावर -1, l की पावर -3, t4 a2। ये आंसर परमेबिलिटी हो चाहे परमिटिविटी, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, लगे ऐसे प्रोसीड करते करते। स्लो एंड स्टडी मींस द रेस। द डे विल कम व्हेन यू विल से दैट सर आस्क डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ 11th और 12th क्लास। तो आप एक दिन आएगा ऐसा सब कुछ कर पाएंगे आराम से। इसलिए धीरे धीरे 5-5 या 4 डायमेंशनल फार्मूले हम डेली करते जा रहे हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे। अब हमने किया था कल लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो खत्म कर ली थी हमने। एक ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डेली करा रहा हूँ, ये न केवल आपके डोमेस्टिक एग्जाम में 11th में आएंगे, ये एंट्रेंस में भी आते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से करना है। इट इज गिवन, वेव की इक्वेशन होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन ऑफ वेव। जो ये वेव होती है जो उसकी इक्वेशन तुम्हें दी हुई होगी। ये वेव क्या इक्वेशन दी हुई है? y इक्वल टू r साइन ओमेगा t माइनस kx।
y क्या है, गिवन होगा बच्चों, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, r इज एम्पलीट्यूड, r इज एम्पलीट्यूड। हो सकता है ये नए वर्ड्स हो आपके लिए, लेकिन मैं इनसे फैमिलियर करा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। k is called wave number, एंगुलर वेव नंबर, या इसको वेव वेक्टर भी कहते हैं बच्चों, एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं। प्रोपेगेशन, वेव का प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी नाम है इसका, तो आपको, और x तो डिस्टेंस होता है, x क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, y क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, r क्या होता है, ये वाला। जब वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है बच्चों, ये जैसे एक वेव ऐसे, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, जब ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता बढ़ता पीक पे मैक्सिमम हो जाता है, तभी r हो जाता है। r से पहले पहले जितना भी होता है तो ये उस टाइम y होता है, छोटा हो चाहे बड़ा, y के डायमेंशन भी लेंथ वाले होंगे, r के डायमेंशन भी लेंथ वाले होंगे। तो सवाल क्या है, ये क्वेश्चन तो गिवन होगी एग्जाम में, सवाल ये है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई k, दिस इज गिवन टू यू, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा बाई k। चलिए आइए, y में डिस्प्लेसमेंट, r में एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की लेंथ होती है, डिस्टेंस यानी साइन, साइन लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, ये एंगल के साथ लगती है बच्चों। तो साइन जिसके साथ भी लगा हुआ है वो एंगल है, साइन थीटा, साइन थीटा ही तो होता है ना, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स के वही डायमेंशनल फार्मूला है जो थीटा के हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स का वही डायमेंशनल फार्मूला है जो थीटा के हैं। अब थीटा क्या है, एंगल, एंगल में से एंगल घटा होगा, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट होती हैं और ऐड होती हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एंगल में से एंगल घटा होगा तो एंगल बचा होगा, इससे ये रिप्रेजेंट होता है बच्चों कि ओमेगा टी की डायमेंशन भी एंगल वाले होंगे, के एक्स का डायमेंशनल फार्मूला भी एंगल वाला होगा। ऐसे क्लियर हो गया, ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला थीटा बाई टाइम और के का डायमेंशनल फार्मूला थीटा एंगल बाई एक्स। ओमेगा के निकल गए, थीटा के तो कोई डायमेंशंस होते नहीं, m0, l0, t0, t is the time, you got answer t minus 1। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, थीटा का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं, m0, l0, t0, x is length, you got answer l minus 1। k का डायमेंशनल फार्मूला l minus 1, ओमेगा का t minus 1, you want ओमेगा by k, सिंपल। तो ओमेगा बाई के आराम से, ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला t माइनस 1, k का डायमेंशनल फार्मूला नीचे l माइनस 1, नीचे वाला ऊपर ले जाओ बच्चों तो l t माइनस 1, और ये तो वेलोसिटी है, इसलिए आज के बाद फैला दो ये बात कि ओमेगा बाई के का डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो l t माइनस 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी के बराबर। ये नई बात आपने सीख ली, अच्छे से ध्यान रखना। I'm repeating, ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन के साथ लगा होता है, साइन के साथ तो एंगल होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वलेंट टू थीटा। फिर इसी क्वांटिटी में से कोई क्वांटिटी घट के एंगल आया है तो पक्की बात है एंगल में से एंगल ही सब्ट्रैक्ट होगा, तभी एंगल बचेगा, क्योंकि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। ओमेगा टी का भी वही डायमेंशन फार्मूला जो थीटा का है, के एक्स का भी वही जो थीटा का है। ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डी, के एक्स इज इक्वल टू थीटा, के इज इक्वल टू थीटा अपॉन एक्स, एक्स इज लेंथ, थीटा नो डायमेंशन। कोई फिर पूछेगा आपसे थीटा कि कोई डायमेंशन नहीं होते, ऐसा क्यों? मैंने रीजन बताया, आपने रीजन बताना है। ये अगर सेंटर है, ये एक आर्क खींचते हो तो थीटा इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क इज लेंथ, रेडियस इज लेंथ, कैंसिल, m0, l0, t0, नो डायमेंशन। Get answer. K का डायमेंशन फार्मूला l minus 1, ओमेगा का t minus 1. Our wanted, our requirement is omega by k. You will get lt minus 1. Very important question for entrance exam, for your domestic exam,
तो आपको घबराना नहीं, तो ऐसे आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं बच्चों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट का। ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा बस कि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एन दिया हुआ है, एन इज माइनस बी, कम ऑन, n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। x जहाँ भी मिल जाए वो तो डिस्टेंस या लेंथ होती है बच्चों। n क्या चीज़ है ये अलग से दे दिया उन्होंने। n इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा दिया हुआ है। और n1 n2 ये दोनों क्या है ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मींस अपॉन, ये आपको पता है। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डी। व्हाट इज डी? डी इज नथिंग बट डिफ्यूजन कांस्टेंट। सवाल क्या है? फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन ऑफ डी, डी का डायमेंशन फार्मूला निकालो। फटाफट हम देखते हैं। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम। नंबर, ये देख नंबर है, नंबर 10 हो, 20 हो, 40 हो, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। ऑल द नंबर्स दे आर डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं। एरिया का तो होता है, इसका नहीं होता। मतलब m0 n0 t0, एरिया का l स्क्वायर, टाइम का t, तो स्मॉल n का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ये तो 1 है बच्चों। l माइनस 2 t माइनस 1 ऊपर ले जाके इक्वल टू d, d का निकालना है आंसर। n1 n2 क्या है बच्चों? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम। फिर अगेन द सेम थिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, पर वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है बच्चों l क्यूब। ये ऊपर जाके l माइनस 3, ये l माइनस 3। नीचे डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटेगी तो डिस्टेंस आएगा, तो कैपिटल D विल बी नॉट टू यू। ये नेगेटिव साइन मैटर नहीं करता डायमेंशंस निकालने में, तो कैपिटल D आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, l माइनस 2 l t माइनस 1 अपॉन l माइनस 3। इसको फटाफट सॉल्व कर देंगे और आंसर होगा l माइनस 3 इससे कटेगा तो l माइनस 1 नीचे बच गया, l माइनस 1 ऊपर जाएगा तो l2 t माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। ऑल द नंबर्स दे आर डायमेंशनलेस। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएंगे। ये एंट्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स अपनी बुक से ट्राई करते रहें, प्रॉब्लम मेरे पास भेजते रहें। ओके, हैव ए नाइस डे।